ABEL. Okay. So, which school you are? St. Anne's. You both are in the same school. Same class? Classmates हो? All right. And rest of you? In the last bench? अच्छा, okay. ठीक है. So she was there in the class in the last 2 lectures also. So all of you, rest of you are all old ones now, right? Only the new ones. So for the new ones, I'll just announce one thing, that we are covering which chapter of English? We are generally covering the grammar portion, and the grammar portion chapter number 1, modals. So this is basically the 3rd class of modals, and the rest 2 classes you will be getting it on YouTube. All right. If in case you miss some class, you can easily find that class on YouTube. ठीक है? Like yesterday's class. All right. Okay. So those students who were there in the class yesterday, what we have covered till now? So we have covered what are modals, like can, should, will. What was the last modal that we've covered? Sir, may, must. May, might, must? No. Shall and will? And also, I think you have not revised the work that we did yesterday. Have you done? Have you done some revision? Can you tell me something about wood? What are the basic things in which wood is used? Past tense of will. Past tense of will. Please speak loud, I can't hear you. Past tense of will. Wood is a past tense of will, all right. What is the scenario that where wood is used? Because I made you write how many scenarios in which wood is used? For polite or for We wrote 6 scenarios, polite. right? Didn't we? How many scenarios did we write? Hanji, last bench. Why you was absent? You were absent. Don't rely on YouTube. Always rely on the live lectures. Yes. On YouTube you can't. What are the demerits? You can't raise your doubt. You can't ask a question. Once the understanding is done, it's over. Always rely on the live classrooms. Okay. So what scenario was being used in 6 things. 6 times we did the use of would. Repeated past actions for polite offers, polite wants, asking someone to do something for you. Example? Would you open the Please pass me. Yes, would you please pass me this water bottle? Yeah, it could be anything. Would you open the window? What else was there? The 5th use? Reported speech. Which one? Reported speech. Okay. Who will tell me what was the reported speech? In a single line, single sentence. क्या थी? Reported speech में would use होता है, that I know. But what was reported speech? The question is this. So when we tell someone a conversation between two other The third person. Yes, we tell someone the present conversation that was held in the present moment of time. For example, the news reporter. For example, we made some example on the picnic yesterday, I think. है ना? कि she will be bringing the snacks for the picnic. So how would she tell different persons that my friend would bring water bottle, my friend would bring a slice of pizza, and it could be anything. ठीक है? ये है reported speech. और लास्ट वाला कुछ और भी था? Unreal condition. अनरियल और इमेजिनरी कंडीशंस. कैसे बनाओ एक? अगर मुझे जापानीज आती, अगर मुझे चाइनीज आती, When I was तो मैं चाइना ही चले जाता. if I हाँ, अगर मैं सुपरमैन होता, वो तो वर आ जाएगा. होता मैं वर आता है हमेशा. इफ़ आई वर अ सुपरमैन, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ पैरट, इफ़ आई वर अ लायन, आई वुड हैव रोड इन द जंगल. बिल्कुल ठीक है. ओके, ऑल राइट. तो ये यहाँ तक किया था हमने. तो प्लीज़ डू रिवाइज वॉट एवर थिंग्स वी डू इन द क्लास, बिकॉज a time will come when your homework will exceed you, will overtake you. You will be baffled, you will be confused. What I need to do now? There is homework everywhere.
सो डोंट लेट योर होमवर्क ओवरटेक यू एंटायरली, ठीक है? यही होता है क्लासेस में। कभी अपने फर्स्ट पेज के कॉपी पे लिखा है कि कुछ कितना नीट एंड क्लीन लिखते हैं, और जैसे ही 3-4 पेज निकल जाते हैं क्या होता है उसमें? बस जैसे चल रहा है चलने दे, ऐसे होता ही नहीं होता, सभी के साथ ऐसे होता है। तो हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं फिर। सो डोंट टेक द क्लासेस कैजुअल, बी विद द क्लास एंड बी अहेड ऑफ द क्लास। यहाँ तक तो जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद दैट, ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। तो ये कुछ अप्रोच हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं बच्चों की, ठीक है? सो विल बी गेटिंग ऑल लॉट्स ऑफ वैरायटी इन द क्लास, ठीक है? तो कभी भी क्या मत होने दो, होमवर्क को अपने से एक्सीड या आगे मत निकलने दो। once it overtakes, what happens? You will not be able to catch it. ऐसे ही होगा लाइफ में, लाइफ भी ऐसी है, स्टडीज़ भी ऐसी हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू कॉल सक्सेस। चलिए नेक्स्ट मॉडल यूज़ करते हैं, आज लिखते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट मॉडल, वेरी इजी वन, शुड। Very easy and very small modal. Actually, what was modal? Modal was a part of a verb which makes the sentence or the verb sentence grammatically meaningful or grammatically correct. That was the modal, and we are doing the modal should. चलिए बताइए, how can we use this modal? For giving any advice, for giving any suggestion, like There should be fan on always. there should be what? बोलो, Should be freedom. freedom for all of us. Okay, Sir, or to question and action. to To question and action. like Should we do this? as you're wearing mask, I'm not able to hear you properly, so bit loud. Should we? Should there be dance in favor? Yeah. Should there be dance in farewell? Should there be? Do this. Yes, should there be dance in a farewell? Should we include the dance in the farewell? Okay. तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं तब क्या बोलते हैं? तुम्हें +2 के बाद ये करना चाहिए, तुम्हें ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए, तुम्हें ये एग्ज़ाम फिल करना चाहिए, तुम्हें रोज़ रात को रनिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम किसी को? उसको पक्का करने के बोल रहे हैं कि एडवाइस दे रहे हैं अपनी? एडवाइस दे रहे हैं। सो वेन एवर वी गिव एडवाइस वी यूज़ द मोडाल शुड। यू शुड गो टू जिम ऑन द रेगुलर बेसिस, यू शुड ईट हेल्दी डाइट, you should practice daily, you should complete your homework daily, you should attend the class daily. So these are some of the examples in which we give some kind of advice to others. So it depends on the other person whether he'll be relying on the advice or he'll be not. ऐसा भी होता है? कैसे? सजेशन नहीं दे रहे, वो हम खुद ही बोल रहे हैं। शैल जैसे कल किया था, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, ये क्या बोल रहे हैं हम? वी आर टेकिंग द यूनानिमस रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। वी वांट द, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी बोलते हैं ना, यूनिटी, एकता चाहिए हमें सबकी, एक साथ डिसीजन चाहिए। वहाँ पे यूज़ किया था, जैसे कि जब सबका डिसीजन एक होगा तभी वो की बात आगे जाएगी। फॉर एग्जांपल, शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, शैल वी अटेंड द क्लास इन द मॉर्निंग, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम ओपिनियन ले रहे हैं, सबका एडवाइस नहीं है, ठीक है? तो शुड का समझ आ गया? लिखिए कुछ चीज़ें। क्या? Sir, जैसे I should be able to finish my work by night. Yeah, this is kind of a target you are giving to yourself. ठीक है, ये टारगेट में आ जाएगा, पूरा सजेशन में नहीं आएगा, ये टारगेट में आ जाएगा। हमारा जैसे हमारा माइंड हमें सजेशन भी देता है, कैसे सजेशन देता है हमारा माइंड हमें? आई शुड वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म टू द क्लास, ठीक है, आई शुड बी रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, तो वो आप उसको फॉलो करते हो। सो एवरी सजेशन इज बीइंग गिवन हेयर टू यू बाय योर ब्रेन और माइंड, ठीक है? लिखिए। Sir, एक और है, he should have done this, he should have done his homework, ही शुडंट हैव डन या ही should have done. शुड हैव डन, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ पे भी एडवाइस दे रहे हो, बिल्कुल।
सपोज करो उसने कुछ काम करने के लिए बोला, ही वेंट अगेंस्ट दैट वर्क और ही डिड द वर्क इन अ वेरी कैजुअल वे, ही वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, तो आप बोल रहे हो ही शुड हैव बीन डन दिस वर्क इन अ सीरियस वे बट ही वॉज वेरी कैजुअल। तो ये आपका सजेशन है, आपके अंदर से एडवाइस निकल के आ रही है कि ये होना चाहिए था बट नहीं हो पा रहा है, उसमें शुड हैव आ जाएगा, वो पास्ट के लिए हो जाएगा, सजेशन फॉर द पास्ट कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस बट ही डिडेंट मेट माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, लिखो शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशंस ऑब्लिक एडवाइस। should is used to express suggestions oblique advice। एग्जाम्पल दे देना एक नीचे, you should study English, you should study English। You should study English. Write down one more example. Second one, you should not laugh at her mistake। First example, you should study English. Second example, you should not laugh at her mistake। Okay, write down the second use of should। देखिए, if should is used with lest, if should is used with lest, L-E-S-T, if should is used with lest, it shows negative purpose, it shows negative purpose, it shows negative purpose। Write down one example, then we will be understanding this। Write down the example, he ran fast, he ran fast, comma, lest he should miss the train। He ran fast lest he should miss the train। Okay, who will tell me the meaning of this sentence? He ran fast lest he should miss the train। क्या बोल रहा है वो भागता तेज है फिर भी उसने ट्रेन छूटी। वो भागता तेज है, he ran fast। सर वो तेज भागा पर फिर मैं चाहता हूँ पर फिर भी वो मिस कर देते हैं, वो तेज भागा पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ट्रेन मिस कर दें। फिर भी मैं चाहता हूँ, Sir, he ran fast lest he should। तेज भागा ताकि वो मिस ना कर सके। Okay, any other? he Any- ran fast, so he won't miss the train. So that he There are less chances he misses. so that he mustn't miss the train। Okay, देखिए लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, ऑलवेज यूज्ड विद शुड, शुड के साथ ही लेस्ट यूज होता है, एंड व्हेन शुड इज लेस्ट इज यूज विद शुड इट जनरली शोज द नेगेटिव पर्पस। वो तेज़ भागा नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी या हो सकती थी, दैट इज़ वाई ही रैन फास्ट, नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती। बट द प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस डजंट मेक दिस सेंस बिकॉज इट्स यूजिंग लेस्ट विद शुड। लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड always used with should and generally shows negative purpose. Don't use lest for the positive purpose, right? जहाँ भी lest use हो रहा है, और lest always 100% will be used after should and that will only show the negative side of the sentence, not the positive sides. जैसे कि यहाँ पर वो इतना तेज़ भागा कि उसकी ट्रेन मिस हो गई या हो जाती, समझ गए? तो माइंड में एक चीज़ आप बना लो कि जहाँ पर भी लेस यूज़ कर रहे हो और शुड का एग्जांपल दे रहे हो, वो किसका मीनिंग देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव?
ऑलवेज इट विल साउंड लाइक अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि दवाई ले लो नहीं तो बीमार हो जाओगे, तो हम क्या बोलते हैं, टेक मेडिसिन अदरवाइज यू विल फॉल इल, है ना। तो इसको कैसे यूज करेंगे, यू शुड टेक मेडिसिन लेस्ट, यू शुड नहीं, सर गुड लेस्ट यू फॉल इल, सीधा सीधा, टेक मेडिसिन या यू शुड टेक मेडिसिन लेस्ट यू फॉल इल, नहीं तो बीमार होना पक्का ही है, ठीक है, समझ गए, ऑल राइट। एक और एग्जांपल लिखो सो दैट मोर क्लैरिटी कम्स इन योर माइंड। सेकंड एग्जांपल लिख लो लेस्ट का ही, टेक केयर, यहां लिखो यू शुड टेक केयर, टेक केयर भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे, यू कैन राइट ईदर ऑफ देम, टेक केयर या यू शुड टेक केयर लेस्ट यू विल फॉल इल या यू फॉल इल, यू फॉल इल, बिल्कुल, नहीं तो बीमार हुए ही हुए, अगर ध्यान रख लो, नहीं तो बीमार होना पक्का है, दैट इज द पॉइंट वेयर लेस्ट हैज द इट्स ओन मीनिंग, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग, बीमार होना पक्का ही है, नेगेटिव पर्पस, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ऑट टू, नेक्स्ट मोडाल ऑट टू, ought to. So this is the modal which we use very less, which we often use. सुना है सर ought to के बारे में, नहीं सुना आपने किसी ने, ओके लेट्स हैव अ थॉट, क्या है, he wanted to, he wanted to, सर नहीं करना जरूरी है, kind of, yes, it's the kind of duty or the responsibility of a person to do or to not to do that particular thing. For example, let's consider it a duty. What's our duty towards our parents? We have to respect, we ought to है ना, रिस्पेक्ट करना ड्यूटी है हमारी, उनकी बात मानना ड्यूटी है। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और किसकी रिस्पेक्ट करनी हमारी ड्यूटी है, अरे वी मस्ट तो होता ही होता है, बट ought to वहाँ लगाते हैं वहाँ जहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज अ राइट सेंटेंस, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ought to रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें करना ही चाहिए और हमें करना ही पड़ेगा। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा संस्कार है, काइंड ऑफ, वहाँ पे लगाते हैं ought to। और ought to कहाँ लगता है, कहीं और ड्यूटी क्या है हमारी पेरेंट्स के अलावा, पढ़ाई करनी, वो तो एक ही चीज़ आ गया। और कुछ जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जब नेशनल एंथम चलता है खड़े होते हैं कि नहीं होते, वी यूजुअली स्टैंड अप, तो वो क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है। तो क्या बनेगा एग्जाम्पल, stand when during इट कुड बी एनीथिंग, ड्यूरिंग नेशनल एंथम, व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेइंग, ऑन द नेशनल एंथम, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा उसके पीछे, समझ आ गया, लिख लो। ought to shows moral obligation, ought to shows moral obligation or duty, ought to shows moral obligation or duty, moral obligation or duty, example, we ought to love our country, 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 ठीक है, don't put ought to everywhere, it will become grammatically wrong, it's not your duty to drink water in the class, it's not the duty of the institute to turn on the fans, is this a duty, it's not the duty, ठीक है, ये एक जनरल सर्विस है जो इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, कंट्री, नेशनल एंथम, पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वो ड्यूटीज़ में आ जाता है, तो वहाँ पे ought to लगता है। सो ought to इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मोडाल विच इज़ यूज इन अ वेरी स्पेसिफिक एरियाज और सिचुएशंस, ठीक है। ओके नेक्स्ट लिखो, यूज टू,
We are about to end our modals by today. Used to. बोलिए. Very easy. It's really cold weather out, but I'm used to it. But I'm used to it, exactly. Or what exactly this means, this modal is kind of a giving you the hint of past habits, past things which you used to do during your childhood. इसके साथ आप क्या हो, बड़े habitual हो, we can say that. जैसे कि अच्छा, ये लिखने में बता देता हूँ, लिखने में D आता है, बोलते वक्त D नहीं आता. दिस काइंड ऑफ D इज़ काइंड ऑफ साइलेंट. ठीक है, यूज टू ही बोलते हैं, लेकिन लिखते टाइम वी पुट D आफ्टर यूज. ओके, सो दिस इज बेसिकली रिजेंबलिंग आवर पास्ट हैबिट्स. जैसे कि पास्ट हैबिट्स हमने कहाँ की थी और कौन से मॉडल में की थी अभी? रिपीटेड पास्ट एक्शंस वर बीइंग क्लासिफाइड बाय वुड. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस. तो ये भी तो हो सकता है, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस. That was also my past habit. If it was not your past repeated action, but it was your past habit, you can use this modal used to. ठीक है, दोनों में से. हाँ, suppose करो it was not your repeated action. कभी कभी rarely हो जाता था वो. ठीक है, जैसे हम कभी कभी rarely, when I was in my childhood, I used to see movies, but it was not my रिपीटेड पास्ट एक्शन. वो ये नहीं था कि मैं हर रिपीट पे ही चलता रहता था. तो वहाँ पे क्या बोल देंगे? आई यूज़ टू वॉच मैनी ओल्ड फिल्म्स या ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड. बट स्कूल जाना रोज़ साइकिल पे, स्कूल के बाद आके कार्टून्स देखने वॉज माई रिपीटेड एक्शन, पास्ट एक्शन. वहाँ पे वुड से बात करेंगे. क्लियर है? लिखो. सर वो एक्शंस भी रहेंगे कि जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अभी भी करते हैं. अभी भी करते हैं. हाँ, तो वो काउंट हो सकते हैं यूज टू. जस्ट सेकंड. कैसे एग्जांपल वो? जैसे कि आई यूज टू राइड बाइसिकल टू माय होम. लेकिन अभी भी करता हूँ. अभी भी करता हूँ. तो ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस यूज कर सकता हूँ यूज टू. बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बीच में आपको एक कनेक्टर लाना पड़ेगा, एंड या हाउएवर, स्टिल, बट. ठीक है, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा जब मैं आई वॉज अ किड आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, but nowadays I am little bit lethargic. Nowadays I feel little lazy. I used to run 100 miles या 50 miles, ज़्यादा हो जाएगा 100, 5 miles every day. But now things have changed and I am able to run only few miles, couple of miles. तो दोनों में यूज़ हो जाएगा used to. ठीक है, बाद में आपने प्रेजेंट के लिए कंट्रास्ट लाना पड़ेगा ना. पास्ट की बात पास्ट में बता दी, फिर सेंटेंस चेंज करने के लिए कंट्रास्ट तो लाना पड़ेगा. हाउ एवर से लेके आ सकते हो, बट से लेके आ सकते हो, एंड से, स्टिल से, किसी से भी कंट्रास्ट ले आओ. आर वी क्लियर? लिखो. यूज टू डिनोट्स पास्ट हैबिट. यूज टू डिनोट पास्ट हैबिट ऑब्लिक सिचुएशन. यूज टू डिनोट्स पास्ट हैबिट ऑब्लिक सिचुएशन. Example, write down the example. She used to study till 2 a.m. She used to study till 2 a.m. Used to denotes past habit oblique situation. Then I made you write down one example. She used to study till 2 a.m. Do boys also study till 2 a.m. or they are only the girls? So we start at 12 a.m. We start at 12 a.m. Okay, that's very nice. So some of the boys are morning. What we call that word as? They awake in the early morning. They are not the night birds. ठीक है, अर्ली बर्ड्स, अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं वो, जो 4 बजे उठ के भी पढ़ लेते हैं बॉयज़. बट गर्ल्स आर द ऑपोजिट. गर्ल्स डू स्टार्ट राइट लाइक अराउंड 10 a.m. and they study whole night and they give the exam and then they sleep. So is this the same way the boys do? Boys generally
ऐसा नहीं है कि मैं जान की तारीफ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे होता था। ठीक है, ओके, पास्ट हैबिट्स और पास्ट सिचुएशंस लिख लिया आपने। ओके, एक और लिखिए इसी के अंदर, इट डजेंट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन, ये नोट डाल लेना, ठीक है। इट डजेंट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन, इट डजेंट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन, ठीक है। तो ये प्रेजेंट रूटीन एक्शन को शो नहीं करता यूज टू, इट जनरली टॉक्स अबाउट पास्ट सिचुएशंस बट नॉट ऑफ प्रेजेंट। बट प्रेजेंट का साथ में लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक कंट्रास्ट लगाना पड़ेगा बीच में। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, पहले आई यूज टू रन 5 miles बट नाउ ओनली 2 miles। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो हम आ जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने वो नहीं लिखा यूज टू का, जैसे जो उसने कहा था कि आई एम हैबिट हो चुकी है मेरे को, हाँ वो हैबिट हो चुकी है, ठीक है। आई एम हैबिचुअल, आई हैव बिकम हैबिचुअल टू यूज टू। जैसे कि एग्जांपल बनाओ, It's very cold weather out there, but I'm used to it. एनी अदर? I'm used to smoking. आई एम यूज टू, ओके, यू बेटर क्विट देन, इट विल टेक 21 days। है ये 21 days का मैजिक टू ब्रेक अ हैबिट? 21 दिन का वो करना पड़ता है। बनाओ, आप बनाओ यूज टू पे, हैबिचुअल पे। अर्लियर आई वॉज अ बिट क्या कहते हैं, एमेच्योर इन स्पीकिंग फ्रेंच और अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग टू फ्रेंच, बट नाउ आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर अबाउट 2 years आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू प्रोफेशनल फ्रेंच, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आदत होगी मेरे को धीरे 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 धीरे। वो इतना इंपॉर्टेंट मोडाल नहीं है, जो पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये पास्ट हैबिट्स है, पास्ट सिचुएशन से ही आता है, ठीक है। चल लिखिए, नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, So primary, auxiliary verbs, AUXILIARY, auxiliary verbs. So what was the interesting thing about primary auxiliary verbs? क्या interesting thing थी? सर ये हेल्पिंग स्टार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब जो था मोडाल वर्ब, मेन, मेन वर्ब। हाँ। So actually verb was categorized into 2 forms. One was the main and other were your helping. But primary auxiliary verbs take something else. They act as both. Like they also act as your main verb and they also act as your helping verbs. ठीक है, that was what primary auxiliary verb has its own special feature. लिखिए, how many primary auxiliary verbs are there? 3, not is MR. They are to be verbs. They are only auxiliary, but we are talking about primary auxiliary, be, do and have. We have 3 primary auxiliary verbs, be, do and have. Chaliye, who will tell me the different forms of do? Sir, what are the 3 primary auxiliary verbs? यही वाले, be, do, have. be, do, have. हाँ, do की फॉर्म्स कौन बताएगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, या डू, डज, डन और प्रेजेंट में डूइंग, दैट्स इट। तो ये क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस बना देगा। लिखिए, ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हियर। आई डू माई वर्क इजीली, आई डू माई वर्क इजीली, सिंपल सही है। कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बीच में बैठा हुआ है, डू, ठीक है। तो उसको नीचे चलिए, ट्राई टू फाइंड आउट द मेन वर्ब हेयर। मेन वर्ब कौन सा, इज वर्क अ वर्ब? Sir, do. Yes, because
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? Main और दोनों, मेन भी हेल्पिंग भी। जहाँ पर मेन में वो सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं तो उसको मेन बोलेंगे, अगर वो हेल्पिंग कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। सो यहाँ पर मेन वर्ब कौन है? डू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। डू और डज V1 फॉर्म बन जाती है इसकी। डिड कौन सी बनती है? V2 फॉर्म, और लास्ट वाला डन V3 फॉर्म। यूजुअली वी हैव वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स? 3, V1, V2, V3। ठीक है, हम सिंपल डू की बात कर रहे हैं। डू और कौन सा बनेगा? डज बिकम्स योर V1, सेकेंड वन डिड, और सेकेंड वन में पास्ट वाला बोल दो कि पास्ट वाला आ जाता है, और लास्ट थर्ड वन पास्ट पार्टिसिपल वाली डन। ठीक है, सो आई राइट डाउन फॉर यू सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। डू और डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, एंड डन बिकम्स योर V3 फॉर्म। Sir, doing. डूइंग उसमें ING फॉर्म आती है, वो उसको ING फॉर्म बोलते हैं। चलो लिखिए। आई डिड नॉट नो हिम। आई डिड नॉट नो हिम। डिड नॉट का कंट्रैक्शन कर देंगे, क्या बन जाएगा? डिडंट। आई डिड नॉट नो हिम। तो क्या क्या मिला है यहाँ पर? आई डिड नॉट नो हिम में I didn't knew him. आई डिड नॉट नो हिम। न्यू हिम आएगा पास्ट में। बोलो क्या कुछ मिला इस सेंटेंस के अंदर? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मिला कुछ? Sir, didn't होना चाहिए। Didn't. डिडेंट, तो डिड नॉट का कंट्रैक्शन डिडेंट तो बनता है। आर नॉट का आंट बनता है, इज नॉट का इजेंट बनता है। ऐसे ही डिड नॉट का क्या बन जाएगा? जैसे मर्जी लिख लो, इट्स अप टू यू। बोल, जब आप बोलते हो तो कंट्रैक्शंस यूज़ करो, वाइल राइटिंग यूज़ द फुल फॉर्म्स। ठीक है, इफ़ यू यूज़ कंट्रैक्शंस वाइल राइटिंग, टीचर माइट डिडक्ट योर मार्क्स। याद रखना है पॉइंट। चलो बताओ, हेल्पिंग वर्ब कौन सा मिला या मेन वर्ब कौन सा मिला? डिड। डिड बिकम्स योर हेल्पिंग और मेन? Both. बोथ। चलो, हु और आर गोइंग फॉर बोथ? ओके, यू ऑल्सो? यू ऑल्सो? ऑल ऑफ यू? सो कैसे गलत कर सकते हैं जब सारे चले गए एक साथ? ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे लिखिए। हैव, बी, डू और हैव है ना? हैव लिखना है सेकंड वाला, सेकंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव। तो पहले इसकी फॉर्म्स लिख लो। V1 फॉर्म हैज और हैव, V2 पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड, पास्ट पार्टिसिपल अगेन हैड, V3 भी हैड ही बनेगा। Sir, have हम present में use करते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। वो यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। आई टेल यू हाउ। आई, यू, वी and they on one side, and he, she, it, or it could be a name of any person on the other side. प्रेजेंट का ही पूछ रहा हूँ, आप प्रेजेंट का पूछ रहे हो ना अभी। he, she and it, or it could be a name of any person. क्या आएगा जी? I have a dog at my home. I have a beautiful house. इसका बनाओ you have, You have now. सेम मत बनाओ, कुछ क्रिएटिव बनाया करो। ट्राई टू बिल्ड समथिंग इंटरेस्टिंग। इट कुड बी अ लॉन्ग आंसर, लॉन्ग सेंटेंस ऑल्सो। Here everything but you are not satisfied.
but still you are not satisfied. Okay, let's consider we. We have nothing, we are good. We have a good team. We We have a good team. ठीक है, वेरी गुड. दे थर्ड पर्सन. they are there. They have nothing but still they are happy. ठीक है, समझ आ गया ना. तो इन ये सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, और ही शीट के साथ क्या लगता है. लगा दो फिर प्रेजेंट के लिए कोई भी एक चीज़ ही के साथ. He has a problem. डिफरेंट सा, अलग सा, सिंपल सा मत बनाना. ही हैज़ अ गुड फेस या ही हैज़, कुछ भी सिंपल नहीं बनाना. ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ एवरी वन. He hasn't done anything right now. He has been alive for long years. ही हैज़ बीन. Alive for some years. अच्छा ठीक है, बट नाउ आई वोंट लेट दिस हैपन, है ना. आप भी मिलाओ सर. He has working hard for his exams. यस, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स. बहुत बढ़िया. ठीक है, समझ आ गया. ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या लगाते हैं. Has been. नेगेटिव से पहले एक बार पास की बात कर लेते हैं. पास के लिए दोनों में सेम लगता है, दोनों में. ठीक है. व्हेन आई विल बी टेकिंग योर क्लास, फुल फ्लेश क्लास ऑन दिस, आई विल टेल यू वेयर वी जनरली मेक मिस्टेक्स. ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए हैवेंट लगाओ. हैजेंट कहाँ लगेगा वो मैं बताऊंगा. वो वहाँ पर जो चेंज आता है अफर्मेटिव और नॉन अफर्मेटिव का आता है, दैट्स इट. वो अभी उसमें मत घुसो, अभी सिंपल रखो कि फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस वी पुट हैव नॉट विच बिकम्स हैवेंट, एंड फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट हैव एंड हैड, एंड फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैज़ इज़ यूज्ड. इतना याद रखो भी. ठीक है, उसमें ज़्यादा मत घुसो बिकॉज वी आर करंटली डूइंग मोडाल्स. तो अभी उसमें जाएंगे तो वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा वो. ऑल राइट, चलो हैव वाला लिखो. एक दो एग्जाम्पल. आई हैव नॉट सीन हिम. आई हैव नॉट सीन हिम. जिसका कंट्रैक्शन क्या बन जाएगा, आई हैवेंट सीन हिम. ठीक है. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम. since 5 o'clock. I had been waiting for him since 5 o'clock. लास्ट बी का कर लेते हैं. बी लिखिए, लास्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी. बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं वो लिख लो. V1 फॉर्म लिखिए बी की. V1 फॉर्म लिखिए. बी खुद, कॉमा इज, एम एंड आर. बी कॉमा इज, एम एंड आर. इज, एम, आर कौन से वाले वर्ब्स भी हैं, टू बी वर्ब्स भी हैं. एंड V2 फॉर्म लिखिए. राइट ऑन द V2 फॉर्म ऑफ बी, was, comma, were. If the subject is plural we use were, subject is singular we use was. And V3 form लिख लो. been, B-E-E-N, B-E-E-N. Let's just make example out of these V1, V2 and V3. First लिखो V1 के लिए कोई example. I am a doctor. been. V3 been, past participle been. ठीक है. V1 के लिए लिख लो. I am a teacher. I am a student. सो मेन वर्ब एम हो जाएगा यहाँ पर. सेकंड लिख लो. शी वॉज वर्किंग हार्ड. शी वॉज वर्किंग हार्ड. शी वॉज वर्किंग हार्ड. सो यहाँ पर वर्किंग के साथ ING आ गया तो मेन वर्ब वर्किंग, हेल्पिंग वर्ब वॉज.